કેમ છે બધાને? અમે બધા મજામાં છીએ. ત્યારનો આજનો વ્લોગ ઇવનિંગથી સ્ટાર્ટ થાય છે. સાંજના 6 વાગ્યા છે, 6 સાડા 6 અરાઉન્ડ થયું છે. નેવું પણ આવી ગયો છે. નેવું હાઈ કરતે બધાને હાય કે શું લાવ્યો દાતિયો નાવા પડી દો. તો જેમ કીધું એમ કે આજનો વ્લોગ સાંજથી ચાલુ થયો છે. સવારે આજે હું ફ્રી નહોતી ને હું સ્કૂલે ગયો તો રેગ્યુલર રૂટીન હતું બધાનું એટલે. અને અત્યારે અમે જઈ રહ્યા છીએ અને હા, અત્યારથી મેં સાંજના ડિનર માટેની તૈયારી ચાલુ કરી દીધી છે. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા પોટેટો બોઇલ્સ થઈ ગયા છે મારા કુકરમાં. અને બીજું બધું આવીને તૈયારી કરશું. સિમ્પલ ડિનર બનવાનું છે, હલકા ફુલકા. હે ને ન્યુ ન્યૂને 2 ડેઝની રજા છે હે ને? શું કરીશ તું રજામાં? આપણી ગાડીમાં છે ને રેનિયા ટુ હીરા ટુ ગિફ્ટ લઈ આવ્યું. ગિફ્ટ લઈ આવ્યો છો હીરો દીદી માટે, રેની દીદી માટે? હે દઈ આવશું. દઈ આવશું એમ? હા, આજે રાતે અમે એક સ્પેશિયલ વસ્તુ બનાવવાના છીએ, તો એના માટે પણ તમે વેઇટ કરજો. પછી બતાવીશું કે અમે શું બનાવવાના છીએ સ્પેશિયલ. કાલે સન્ડે છે ને, પરમ દિવસે મંડેના રક્ષાબંધન છે, તો રક્ષાબંધન સ્પેશિયલ અમે કંઈક બનાવવાના છીએ. તો સ્ટે ટ્યુન્ડ. તો ચલો મળીએ થોડી વારમાં. તો અમે પાછા આવી ગયા છીએ નાનીના ઘરે. કેમ નહીં? મારે થોડુંક કામ હતું એટલે અમે આવ્યા છીએ. નેવુંને મજા આવે કા? નેવું મજા આવે ને? જો અમે આવ્યા ને મામી સામે મળ્યા અમને સ્વાગત કરવા માટે. બાય. ચલો ચલો ચલો. પૂગી ગયો મમ્મી ને અર્ધે પૂગી ગયો. હા, કેમ છે? હા હા, ન્યુ જો અંદર વયો ગયો. જો અહીંયા બે બા સત્સંગ કરે છે. અહીંયા છોટા બા બેઠા. શું કરવું તારે નેવ? હવે અત્યારે નથી દોરું, પાછા આપણે કાલ આવશું. હા, રજા છે ને ત્યારે આવશું પાછા. હાલે ઘરે દોરજે. હાલ આપણી ઘરે દોરજે. હો હાલ બાય કરી દે હવે ઈલા નાનીને બા ને બધાને. હાલો આવું નથી આને ઘરે. હાલ હાલ હજી આપણે હાલો ઘરે જઈને પછી રસોઈ બનાવી. ડેડું તેડવા જવાનું. જાવું ન હોય અહીંથી. બાય કરી દે ઈલા નાની. હાલો ડેડીને કહેજે કે હાલો રવિ મામાના ઘરે જાવ. બાય કરી દે. હાલો હવે આવજો. આવજે બેટા. હમણાં વેકેશનમાં આવજો. હજી દુકાનમાં બંધ થઈ બદલાવી જજો. तो जी हम लोग आ गए हैं वापस घर पे, है ना न्यू? हम लोग गए थे ईला नानी के घर क्योंकि हम वहाँ पे गए थे ईला नानी के घर पे क्योंकि मुझे कुछ काम था और क्या करने गए थे, हाँ उससे पहले हम लोग गए थे दूध लेना था, थोड़ी सी सब्जियाँ लेनी थी, वो सब लेके फिर गए थे वहाँ पे. थोड़ी देर बैठ के आ गए, है ना न्यू? मज़ा आया न्यू को? है तो चलो अभी 7:30 बज गए हैं शाम के और अभी जल्दी जल्दी से डिनर बना लेते हैं. फिर आज बहुत सारा काम है. तो आज डिनर में बनने वाला है सिंपल सा पोहा. यूजुअली क्या होता है कि सभी लोग पोहा ब्रेकफास्ट में खाते हैं, हम लोग डिनर में खाएंगे, है ना? तो चलिए जल्दी से पहले मैं ये सारी सब्जियाँ, ये मिल्क, वो सब कुछ बॉईल करने, मिल्क बॉईल करने रख देती हूँ. सब्जियाँ फ्रेश है तो वो धो के रख देती हूँ. फिर बनाते हैं डिनर और न्यू यहाँ पे खेलेगा तब तक, है ना न्यू? खेलोगे ना? तो रमेश तू ABCD थी, टॉयस थी. તો ચલો તું અહીંયા ટોયસથી રમ, ત્યાં સુધીમાં હું તારા માટે ડિનર બનાવી દઉં. ઓકે? આજે પૌવા બટેટા બનાવો છો, તારે ખાવા છે? નથી ભાવતા તો તારા માટે પરોઠું બનાવી દઈશ. ઓકે? તું પરોઠું અને ચા દૂધ પી લેજો. હા चलो रमो. हम लोग सिर्फ और सिर्फ बटा पोहा ही खाएंगे.
तो यहाँ पे मैंने तेल बनाने के लिए यहाँ पे तेल गर्म होने के लिए रख दिया है और तेल गर्म हो जाए तब तक हम तैयारी कर लेते हैं सारी। तो ये देखिए मेरे इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे मैंने पोटैटो जो मैंने बॉईल कर दिए थे वो है, मिर्च डाली है, एक टोमेटो ऑनियन एक मीडियम साइज़ के, और बेसिक मसाला, और यहाँ पे पोहा मैंने भिगो के रख दिए हैं। और ये सींग के दाने जो मांडवी के दाने होते हैं ना वो है, वो मुझे पसंद है, इसीलिए मैं अलग से पहले फ्राई करके निकाल लूँगी, पूरे पोहे में नहीं डालूँगी। देखिए यहाँ पे ये जो दाने हैं ना ये ऐसे हो चुके हैं फ्राई, तो इसे मैं साइड में निकाल लूँगी। ये देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं कुछ। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, क्योंकि मुझे पर्सनली जीरा बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी सी हींग, और पहले हम लोग डाल देंगे ये पोटैटो बॉइल्ड ही है तो पोटैटो नहीं डालेंगे, ऑनियन और टोमेटो डाल के इसे थोड़ी देर के लिए पका देंगे। ये भी मैं इसमें टोमेटो ऑनियन और पोटैटो के हिसाब से ही नमक डाल रही हूँ, थोड़ी सी हल्दी ताकि जल्दी से पक जाए। अभी यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम एकदम स्लो रखी है क्योंकि तेल हमारा गर्म ही था, एकदम से गर्म कर दूंगी ना तो जल जाएगा। इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देते हैं, फिर हम पोटैटो डालेंगे। तो अभी करीब 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये थोड़े थोड़े पक गए हैं हमारे टोमेटो ऑनियंस। तो अभी हम इसमें बॉईल किया हुआ आलू डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो पहले तो जाएगा हमारा बहुत ही अच्छी मात्रा में हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, बहुत तीखे नहीं बना रही हूँ, और पोहा जितना है उसके हिसाब से नमक भी डाल दूँगी अभी अभी। और मैं इसमें डाल रही हूँ ये जो नींबू के क्यूब्स बनाए थे ना, मैंने ऐसे बोतल भर ली है, फ्रीज़र में रख दिए हैं। अभी मैं इसमें से आज बहुत ज़्यादा नहीं बनाया है इसलिए 2 क्यूब डालूंगी, करीब 1 नींबू जितना। ये क्यूब ना बना के रख देते हैं ना फ्रीज़र में, बहुत ही ईजी रहता है। जब भी आपको कुछ भी बनाना हो ना, फटाक से नींबू निचोड़ने की कुछ झंझट ही नहीं। देखिए कितना मस्त कलर आ गया है। नींबू डाला था ना तो उसी के हिसाब से 1 चम्मच जितनी शुगर ऐड कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, 1 चम्मच ही करेंगे क्योंकि थोड़ा सा खट्टापन तो पोहे में से ही अच्छा लगता है। तो अभी थोड़ी सी गैस की फ्लेम हाई करके इसे 1 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे, फिर इसमें डालेंगे पोहा। हाँ, इसे हिलाते रहना है बीच बीच में। तो अभी ये मस्त एकदम पक गया है, मसाला एकदम आलू के ऊपर चढ़ गया है। तो હવે આપણે એમાં નાખશું પૌવા। जो पौवा આપણે પલાળ્યા હતા ને, देखो थोड़ी देर पहले पौवा भिगा लेते हैं ना तो इसे एकदम छूटे छूटे मीन्स के अलग अलग होते हैं। अब हम इसमें ये पोहा डाल देंगे। मुझे पता नहीं सुबह सुबह क्या होता है कि इतनी जल्दी होती है और सुबह सुबह पोहा खाना अच्छा नहीं लगता। इससे तो अच्छा है कि हल्के फुल्के हम पोहे, वैसे भी हल्के होते हैं खाने में, हलवा होता है ऐसा कहा जाता है। तो हम लोग मोस्टली डिनर में प्रीफर करते हैं पोहा खाना, क्योंकि इतना भारी डिनर भी नहीं होगा और पोहा खाया होता है ना तो लाइट लाइट ऐसा रहता है। और अभी क्या है, बारिश की सीज़न है, तो बारिश की सीज़न में रात को वैसे जैसा जितना कम या हलवा खुराक लेना उतना ही अच्छा है, तो इसीलिए आज पोहा बना है। हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। तो देखिए हमारे ब्यूटीफुल से कलर तो देखिए, कितना अच्छा आया है, टेस्टी एकदम पोहा रेडी है। चलिए आप लोग भी आ जाइए डिनर करने के लिए।
और अभी यहाँ पे दूध बॉईल हो गया है और अभी मुझे न्यू के लिए पराठा भी बनाना है क्योंकि वो पोहा नहीं खाता है। तो चलिए अब जल्दी जल्दी से उसके लिए पराठा बनाते हैं, फिर उसको डिनर करवाते हैं। न्यू જમી લીધું? તો અમે લોકો ડિનર બની ગયું છે, ન્યૂએ જમી પણ લીધું છે, હે ને ન્યૂ? શું ખાધું તે? चीज पकड़ी હે શું કરસ બેટો? વાગ્યું છે? અચ્છા वाइगू ओले न्यू ने पग में वाइगू है। और हाँ, हम लोग गए थे ना इला नानी के घर पे, तो वहाँ से मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा वाला गिफ्ट आ गया है रक्षाबंधन का, जो यहाँ पे है, ये देखिए। इसमें मेरा रक्षाबंधन का गिफ्ट है जो मैं अभी नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को, वो मैं रक्षाबंधन वाले वीडियो में दिखाऊंगी, तो उसके लिए बने रहिए। मेरे कज़िन्स है, कज़िन भाई है और भाभी है, उसने गिफ्ट दिया है मुझे रक्षाबंधन का, क्योंकि वो लोग भाभी गए हैं रक्षाबंधन के लिए अपने मम्मी के घर, तो शायद वो लोग नहीं आ पाएंगे, तो इसीलिए मैं आज सुबह ही गई थी राखी देने के लिए कि आप लोग अपने टाइम के मुताबिक बांध लेना। अगर यहाँ पे हो गए तो आएंगे बांधवाने के लिए राखी, तो उसने आज ही मुझे गिफ्ट भी दे दिया। अगर आप लोग देखना चाहते हो क्या है तो वो आप लोगों को वेट करना होगा, रक्षाबंधन वाले वीडियो में ज़रूर देखना। तो अभी क्या है, अभी 8:30 बजे है, न्यू ने डिनर भी कर लिया है और हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। न्यू खेल रहा था, मैं यहाँ पे बैठी थी थोड़ी देर के लिए, फिर हम लोग पार्थ को लेने के लिए जाएंगे, है ना न्यू? डैडी ने तेड़वा जवानुं छे ने हमणां, डैडीनो कॉल आवे ने पछी, तो उसको लेने जाएंगे बस स्टॉप पर, फिर आके मैं और पार्थ डिनर करेंगे।